Namaste. We've made this film, History of Yoga, the path of my ancestors. It is the first film of its kind in the world on 6,000 years of history and philosophy of yoga. It is always asked what inspired us to make this film. The inspiration is very much in the family. My grandfather, Dr. D.S. Kothari, scientist, physicist, and first scientific advisor of Government of India, he organized a conference in 1975 in New Delhi on yoga, science, and man. So here was yoga and science and man at the center. Many yoga practitioners, scientists, philosophers, medical doctors deliberated in this conference. So this was the first incident. And the second was in 1970 when my father, Dr. L.K. Kothari, a medical practitioner, performed a unique experiment at R&T Medical College, Udaipur, where a yogi went in an underground pit in a samadhi and vital parameters were monitored throughout 7 days. So this results of this unique experiments were published in American Heart Journal, and it created a lot of excitement in national and international press. So this inspired us to look into the scientific aspects of yoga and the traditions of India. So this film was made. The film is a 6,000-year journey into origin, evolution, and development of yoga. 6 years of extensive research across Indian subcontinent and museums of Europe and US were done to record evidence of yoga. Also, we traveled to 137 locations, including 84 archaeological sites, 35 museums, libraries, temples, and shrines to look for evidence. And 30 eminent scholars contributed in this film. 18 appear in it. They are from the field of archaeology, art history, philosophy, medical science, and some yoga practitioners also have deliberated to elucidate the subject. And the story explores the element of yoga in Harappa times, Vedic period, Jainism, Buddhism, Sufism, and very many peripheral doctrines of India. The film ends in 19th century where modern science acknowledges the potential of yoga in a new light. India's magnificent iconography, temple art, diverse sculptures, ancient relics, wall paintings, manuscripts all unfold with wisdom of yoga in this path-defining documentary. The film had 34 screenings across India, Europe, and US, Canada. And the Ministry of External Affairs has taken this film to screen it at all its missions abroad, about 200 countries. People from across the globe have written to us who have watched this film. They have demanded its translation into many foreign languages like Russian, Spanish, Portuguese, Mandarin, French, German, all these languages. So I think it's creating a lot of interest. Ramji Om, writer and researcher of this film, will tell you what inspired him to write this film. And over to Ramji. नमस्कार। योग पे फिल्म बनाने की प्रेरणा स्वयं की जिज्ञासा थी। मैं खुद ही योग को बहुत गहराई से जानना चाहता था, और दूसरी बात ये थी कि बचपन से जैसे मैंने जो योग सीखा था वो एक प्रकार का योग था, वो संपूर्ण योग था। उसमें 8 अंग थे, वो पतंजलि का योग दर्शन था, उसी हिसाब से उसका अभ्यास मैंने किया था, और उसमें यम नियम पर बड़ा जोर था। जैसे अहिंसा है, अब अहिंसा और सत्य, ये दोनों चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने अपनी शिक्षा में भी देखा कि गांधी जी ने इन 2 यमों को लेकर के ही पूरे देश को बदल डाला, पूरे अपने जीवन को भी बदल डाला और पूरे देश पर इसकी छाप छोड़ी। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण अंग थे जो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि योग की स्कूलों में योग कैसे किया जा रहा है, योग के शिक्षक योग को कैसे सिखा रहे हैं। तो उसमें देखा कि जैसे ये यम, बहुत महत्वपूर्ण यम ये गायब हैं उसमें से, और सारा जोर जो है वो आसन पर है और कुछ प्राणायाम पर है, और ध्यान की अलग से गुरु परंपराएं चल रही है। तो मैं कभी किसी से मिलता था तो कहता था, वो लोग बोलते थे कि भाई हम योग नहीं कर रहे, हम तो ध्यान कर रहे हैं। तो ये बड़ा भ्रमित कर देने वाला एक ऐसा वातावरण था, तो उसको दूर करना और ये भी एक चुनौती थी। दूसरी बात है कि हम खुद इतिहास में जाना चाहते हैं।
हर आदमी भारतीय जो है वो उसकी एक इतिहास दृष्टि है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि इतिहास जो है हमारा प्राचीन जो है वो बहुत स्वर्णकालीन है, स्वर्णिम है। उसका कारण शायद हमारी इतिहास की धारणा है, जिसमें ये माना गया है कि 4 युग होते हैं। उसमें पहला युग कृतयुग होता है, सतयुग होता है, उसमें चीज़ें बहुत परफेक्ट रहती है, उसमें धर्म भी पूर्ण अवस्था में रहता है। फिर उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग में चीज़ों का ह्रास होता है, और इस समय हम कलयुग में रह रहे हैं। तो भारतीय मन में कहीं न कहीं अपने इतिहास में जाके उस पूर्णता को जानने की जिज्ञासा रहती है। ये मेरे मन में भी थी, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हालांकि आधुनिक इतिहास दृष्टि भिन्न हो सकती है और उसको हम मानते हैं। इसके अलावा हम, ये तो हो गई इतिहास को जानने की, ये तो इस पे हम एक किताब भी लिख सकते थे। लेकिन फिर ये लगा कि जो योग हम पढ़ रहे हैं, जो योग हम जान रहे हैं, जब हम पुरातात्विक स्थलों पर गए, जब हमने अलग अलग मूर्तियाँ देखी, तो फिर उसमें ये देखा कि शब्दों में कुछ बातें कही नहीं जा सकती। जैसे योग की अवस्था प्राप्त होने पर जो गहरी शांति किसी चेहरे पर उतरती है, जो गहरी एकाग्रता और जो गहरी प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता क्या होती है, उसका भाव क्या होता है, वो एक मूर्ति पे जिस तरह से आ सकती है, आप उसको शब्दों में नहीं कह सकते। तो इसलिए किताब से ज़्यादा ये लगा कि इसको दृश्य माध्यम से दिखाया जाए, और यही कारण है कि हमने इस पर फिल्म बनाने की सोची कि जो बात शब्दों में नहीं कही जा सकती वो दृश्य से कही जा सकती है। जो पश्चिम में और ज़्यादातर विकसित देशों में और भारत में भी जो बहुत एफ्लुएंट लोग हैं, वो जिस तरह का योग कर रहे हैं वो है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तनाव मुक्त रहें, बीमारी न हो, वो उसके लिए योग कर रहे हैं। सब भारतीय मिलके, क्योंकि भारत में गरीबी भी है, भारत में बहुत सारी समस्याएं भी है, वो क्या योग से सीख सकते हैं और क्या एक दृष्टांत पेश कर सकते हैं। तो वो चीज़ केवल आसन नहीं हो सकता, वो है कि योग के यम नियम पे भारतीय ध्यान दें। भ्रष्टाचार भारत में बहुत बड़ी समस्या है, और जब ये कंडक्ट है, अगर जो यम है वो आचरण के नियम है, उनमें अगर ध्यान देंगे तो हम सामूहिक रूप से एक स्वस्थ समाज की रचना कर पाएंगे। और दूसरी समस्या जो हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत जोर देते हैं उस पर, वो गंदगी की है। तो योग में जो शुचिता का आदर्श है वो भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर, मन और अपने चारों तरफ के पर्यावरण को साफ रखना, शुद्ध रखना। जहाँ जहाँ योग के आसन में बैठने के दृष्टांत मिलते हैं, जिस जिस ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि शांत, स्वच्छ और सुचितापूर्ण वातावरण में बैठे। अब ऐसा वातावरण क्या हम इस देश में पैदा कर पाए हैं? अभी ये हमारे सामने चुनौती है, हमारे लिए यही बड़ी चुनौती है। वैसे योग के कई मूल्य हमारे भारतीयों के, खास तौर से जो आम भारतीय है, उसके जीवन में अनजाने ही घुसे हुए हैं। वो उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो बचपन से उसके संस्कारों में आता है, जिसको कुल धर्म बोलते हैं। वो कहीं से परंपराओं से चलता हुआ उसके जीवन में वो प्रवाहित है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत छूट गई है, परंपराएं टूट गई है, खो गई है, उनको शायद हम पुनर्जीवित कर सकें। ये भारतीयों की सबसे बड़ी चुनौती है और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो 6000 वर्षों का इतिहास वैसे बड़ा लंबा इतिहास है, और योग का तो इतिहास बहुत ही समृद्ध है। तो उसको तो वैसे तो ये हमारी 90 मिनट के करीब फिल्म है, उसमें बांधना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और आप कह रहे हैं कि मैं उसको कुछ शब्दों में कहूँ, ये और भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी मैं इसको इस तरह से समराइज अपन कर सकते हैं कि जो 3900 BC से जो सिंधु सभ्यता शुरू होती है, उसमें हर मौके पर योग के अंग दिखाई पड़ेंगे। यदि आप पूर्वाग्रह रहित दृष्टि से देखें और उस दृष्टि से देखें कि भारतीयों का आज का जीवन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उस दृष्टि से अगर आप सिंधु सरस्वती सभ्यता को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि सबसे पहली चीज़ जो सिंधु घाटी सभ्यता के
सभ्यता में नजर आती है वो है योग के यम और नियम, उनका शांतिपूर्ण जीवन और उनकी सुचितापूर्ण नगर शैली, नगर का उसकी योजना और उसका रखरखाव शौचपूर्ण, ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से वहाँ देख सकते हैं। और अब तकनीक के रूप पर आते हैं, आप कह सकते हैं कि ये तो और भी कहीं नज़र आ जाएगा किसी भी सभ्यता में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आचरण के नियम और सुचिता जो है आवश्यक रूप से योग से ही संबंधित है। ये एक प्रश्न उठ सकता है, कोई भी इसको ये कह सकता है, लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे ज़्यादा सील, जो पशुपति की सील जिसको मानते हैं, वो एक ऐसे आसन में है जो साधारण बैठने का आसन नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जो कहीं भी दुनिया के किसी भी भाग में नज़र आ जाए। वो जो भद्रासन में बैठी हुई चीज़ है वो एक तकनीकी आसन है, उसका एक विशेष बाद के ग्रंथों में आपको दिखाई पड़ेगा कि उसका पर्पज क्या है। राजा राज्याभिषेक के समय, स्नान के समय उस आसन में बैठता है। ये महाभारत के अंशों में आपको दिखाई देता है कि युधिष्ठिर किस तरह से उसकी दिनचर्या शुरू होती है, वो भद्रासन में बैठता है तब स्नान करता है। तो आपको ये नज़र आता है कि ये परंपराएं टूटी नहीं है, और वो भद्रासन जो है वो हठ योग का बड़ा कठिन आसन है। उसके अंदर अब जब हम अगर हठ योग प्रदीपिका और इनको घिरण संहिता को अगर प्रमाण माने तो भद्रासन में एक मूल बंध भी लगता है और भद्रासन में कुछ श्वास का नियमन भी होता है। तो ये चीज़ें इस बात की तरफ संकेत करती है कि योग। अच्छा, दूसरी टेराकोटा जो फिगरीन्स मिली है, जो मृणमूर्तियाँ मिली है, उसमें आसन के दूसरे रूप भी दिखाई देते हैं। उनको लोग कहते हैं कि ये तो पक्षियों जैसी आकृति है, पर वो कहते हैं जिन्होंने बाद के भारतीय इतिहास को पढ़ा नहीं है, उन परंपराओं की अटूटता को देखा नहीं है, वो लोग कहते हैं जो परंपराएं निरंतर चलती आ रही है उसके ऊपर अगर आप दृष्टिपात करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो मृणमूर्तियाँ और कुछ नहीं हो सकती, वो योग के कठिन आसन है और हठ योग के आसन है। वो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको सिंधु सभ्यता में हठ योग के आसन मिलते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो उनका जो कुछ विद्वानों ने कहा है, बड़े विद्वानों ने कहा है, डीपी चट्टोपाध्याय उसमें से एक है, कि उनकी जीवन शैली जो मात्र सत्तात्मक परिवार है उनमें आप कहीं न कहीं सांख्य के दर्शन का सूत्रपात देख सकते हैं। और योग और सांख्य में चोली दामन का साथ रहा है, दोनों जुड़े रहे हैं। इतिहास की पूरी यात्रा में, योग की पूरी इतिहास यात्रा में सांख्य ने योग का साथ नहीं छोड़ा है और योग ने सांख्य का साथ नहीं छोड़ा है। और सांख्य को मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा रैशनल विचारधारा है, सबसे ज़्यादा बौद्धिक तर्कपूर्ण दर्शन है भारत का। और भारत के जनमानस को, भारतीय दर्शनों को जितना सांख्य ने प्रभावित किया है और किसी दर्शन ने उतना प्रभावित नहीं किया है। और सांख्य में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, वो लोक से जुड़ा हुआ है, लोक से सांख्य ने बहुत कुछ लिया है। तो सिंधु सभ्यता में, सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसको कि सही नाम होना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता में योग के आप स्पष्ट रूप से एक विकसित स्वरूप को पाएंगे। यही एक विद्वान ने उसमें कहा भी है, बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि योग ने बहुत विकास कर लिया था जब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के ऊपर के युग में आते हैं। उसके बाद जो योग की दूसरी यात्रा है वो वेद का युग है। अब वेद में देखिए, वेद की भाषा बहुत सिंबॉलिक है और वेद में योग शब्द नहीं आया है, लेकिन बाकी के योग के लगभग सब अंगों को आप पा सकते हैं वेद में। सबसे बड़ी बात है वेद में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रचलन है, जिसकी तरफ विद्वानों का ध्यान गया ही नहीं, वो है तप। प्रजापति ने तप से ही सृष्टि को उत्पन्न किया और तप की आप संदर्भ आप योग सूत्र में देखिए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तप पहला वर्ड है क्रिया योग का। पतंजलि जो जब क्रिया योग की व्याख्या कर रहे हैं तो तप का नाम सबसे पहले लिया है, और तप ही है जो वेदों में योग बनकर चला है। भाषा बदलती है, शब्दावली बदलती है, तो बाद में योग शब्द से बड़ा फैसिनेशन हो गया। बाद के युगों में योग शब्द से बड़ा दीवानगी हो गई एक तरह से भारतीय जनमानस को, और योग बहुत प्रयोग में लाए हैं। लेकिन वेद के समय शायद ये तप शब्द है जो योग का प्रतीक है। और वेद में
वेद वेद का जो सबसे प्रमुख मंत्र है, जो लोकप्रिय मंत्र है, जिसको भारतीय घर घर में जिसकी उपासना करते हैं, वो है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का अर्थ देखिए, वो ध्यान की बात करता है, हम ध्यान करें। अब किसी भी विद्वान का इस तरफ आज तक बहुत ज़्यादा नज़र नहीं गई है कि गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या है। ध्यान करें, जब गायत्री मंत्र खुद ध्यान करने के लिए बोलता है तो क्या वो योग नहीं है? वो योग ही है। और दूसरी बात, उसमें जब विधि बताइए, वेद है, वेद के मंत्रों की विधियां हैं। जब उन विधियों में जाते हैं तो पता चलता है कि जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो आप एक आसन में बैठें, ऐसा लिखा है, और श्वास प्रश्वास नहीं करें, श्वास न लें, यानी कुंभक करें। तो उसमें प्राणायाम भी है, आसन भी है, उसकी विधि में ही है। इसके अलावा वेदों में, प्राचीन जो ऋग्वेद है उसमें कपिल का भी संदर्भ आया है, उसमें केशिन मुनियों का संबंध, केशिन मुनि की जो स्वरूप है उसको मध्यकाल के जो हठयोगी है वो उसमें काफ़ी समरूपता है दोनों में। और इसमें उसकी जैसे लंबी जटाएं हैं, वो जिस तरह से चलते हैं, उनको वात रसना मुनि भी कहा गया है। अब वात रसना शब्द ही ऐसा है जिसमें नाड़ी शुद्धि और ये जो शीतली प्राणायाम और ये सब आ जाते हैं उसमें। दूसरी बात महत्वपूर्ण ऋग्वेद में और बाद के वैदिक साहित्य में यह है कि जो रुद्र का रूप है, जिसको हम आदि योगी मानते हैं, मध्यकाल में हठयोगी ग्रंथों ने माना है कि रुद्र जो है, जो शिव है, और वो शिव ही है, पशुपति ही है, उसमें भी सिंधु सभ्यता में भी। तो यहाँ जो वेद में जो शिव का रूप है वो वैसा ही है, वो भारत में कभी बदला नहीं है। वो शिव का जो योगी वाला स्वरूप है, वो जटाधारी, वो रुद्र, वो तूफान लाने वाला, वो जो प्रचंड है और वो आसनों में बैठता है, वो संकल्प करता है, वो सब शिव का वैसा ही रूप है। तो वेद में वो परंपरा टूटी नहीं, इतना हम कह सकते हैं। और वेदांत का जो साहित्य है, उत्तर वैदिक काल का जो साहित्य है, उसमें तो कुंडलिनी के संकेत भी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कठोपनिषद में तो योग अपने सही अर्थों में, जिस अर्थ में आज हम योग शब्द को जानते हैं, कठोपनिषद में तो आया ही है। इस यम ने इसका उपदेश नचिकेता को दिया है। और उपनिषदों में एक बात और आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि योग के जो यम नियम ध्यान है, योग का जो ज्ञानमय पक्ष है, यहाँ तक कि सांख्य भी उसमें है। तो योग की ये परंपरा वेद काल में भी जारी रही, उत्तर वैदिक काल में भी जारी रही। भगवान बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं। बुद्ध के काल में बौद्ध ग्रंथों में स्वयं कहा है कि बुद्ध आडार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के पास गए, वहाँ उन्होंने सीखा। वो योग और सांख्य की तकनीक थी। और उनके खुद के प्रयोगों में बताते हैं कि वो जिस आसन में बैठे, जिस तरह की क्रियाएं उन्होंने की, वो काफ़ी हठ योग से मेल खाती है। उसके बाद के जैसे हम कहते हैं कि भाई एक परंपरा है श्रमण परंपरा, वो जैन परंपरा भी है, उसमें महाव्रतों का बड़ा उसमें जोर है। वो बार बार मुझे यही कहना है कि हम भारतीय के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इन व्रतों की ही है। जो जीवन में शुचिता है और जो संयम है, वो हमारे आचरण में जो संयम है, उससे हम शायद हमारे मन को स्थिरता होगी और हम एक दुनिया के सामने दृष्टांत पेश कर पाएंगे, दुनिया के सामने आदर्श पेश कर पाएंगे। जैसे हमारे कई लोग कहेंगे कि हम भारत को जगत गुरु था, जगत गुरु होना चाहिए। गुरु होना बहुत बाद की बात है, पहले आप अपना आदर्श तो पेश करो। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसका अनुसरण किया जा सके। तो आचरण के रूप में हम तभी आदर्श पेश कर पाएंगे जब जैनों ने जो महाव्रत बताए, जो पतंजलि ने बताया, जो सभी परंपराओं में स्वीकार किए गए हैं, पर जैनों ने इसको बहुत पूर्णता से इस आदर्श को रखा। व्रतों को महाव्रत कहा। यम जो है वो व्रत कहे जाते हैं, पतंजलि ने व्रत कहा है। पतंजलि ने जब कहा कि ये कालातीत हो जाते हैं, दिग्देश कालानुबंधनों को जब ये छोड़ देते हैं तो इनको महाव्रत कहते हैं। तो ये महाव्रतों का जो जैनों का आदर्श है वो हमको अपनाने की जरूरत है। और बाद के ग्रंथों में महाभारत का विस्तार होता गया, स्वयं पतंजलि आ गए, फिर गीता आ गई, उनमें योग है। फिर जो है पूर्व मध्य काल में कुछ उपनिषद लिखे गए, उनमें बहुत योग हैं। और उसके बाद फिर हम हठयोग की परंपरा में आ जाते हैं। हठयोग में बहुत विस्तार से योग की क्रियाओं का वर्णन है, लेकिन वहाँ भी ये कह दिया गया है कि ये तो राजयोग के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद तो उत्तर मध्यकाल में तो बहुत सारे तांत्रिक और ये बहुत समृद्धि पे चले जाते हैं। पर इस समय परंपराएं टूट भी गई। जब अंग्रेज़ भारत में आए उस समय बहुत सारी परंपराएं टूट रही थी। शायद इसलिए देखिए, एक चीज़ मानना चाहिए कि भारतीयों ने भारत के जो धार्मिक
धर्म, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो धार्मिक मनस्थिति है, उन धार्मिक मनोभावों ने योग की परंपराओं को बड़े बड़े लगाव से सींचा है और उससे वो आगे बढ़ी है। आप योग की टेक्निक, भाई ये साइंटिफिक टेक्निक है, इसमें धर्म का कोई अंश नहीं है, ऐसा करके परंपराएं नहीं चलती है। कहीं न कहीं भारतीय चेतना अब भावोद्रेक के साथ उमड़ के आई है इन परंपराओं में, और तभी ये परंपराएं सिंचित हुई है। पर जैसे जैसे भारत में हिंदू धर्म का रूढ़िवाद की तरफ पतन हुआ, उनकी हताशा सामने आती है, उन पे आक्रमण होते हैं, उनके मंदिर गिराए जाते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, फिर बाद में अंग्रेज़ों के समय में उन पे आधुनिक जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही मानवतावाद है, भौतिक मानवतावाद है, उसके संदर्भ में जब योग को देखा गया तो फिर उसकी पुनर्व्याख्या हुई। फिर स्वामी विवेकानंद जो पहले मैं कह सकता हूँ कि बड़े क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने जो शिकागो भाषण दिया, उनकी तरफ लोगों का, पश्चिम के लोगों का आकर्षण बढ़ा कि भाई ये तो आदमी कहता है कि हमारी सत्ता जो है वो दिव्य है, तो सत्ता दिव्य है, ये योग का कंसेप्ट है कि पुरुष है हम लोग और सत्ता हमारी जो है निष्कलंक है, उसको पहचानना है। तो वहाँ से फिर ये इसका विस्तार शुरू होता है। तो ये योग के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। हमको योग जानने के लिए इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं कुछ योग पे जो बहुत प्रामाणिक है और बहुत संपूर्णता से योग की व्याख्या करते हैं। योग को बहुत खुल के वो कह सकते हैं कि आदर्श ग्रंथ है। तो उसमें पतंजलि मुनि का योग सूत्र है, वो सबसे ज़्यादा समग्र ग्रंथ है। वो योग को ही विषय बना करके उस समय तक की सबसे ज़्यादा विकसित जो परंपराएं थी, जो टेक्निक थी, उसको उन्होंने कंपाइल किया है। अब पतंजलि मुनि का योग सूत्रात्मक शैली में है, उसमें समझ में नहीं आता है उस ग्रंथ में, तो उसको समझने के लिए व्यास मुनि ने एक व्यास भाष्य लिखा है, और वो व्यास भाष्य बहुत बहुत विस्तार से योग को बताता है। लेकिन वो भी कई लोगों के लिए कठिन होता है, क्योंकि परंपराएं बाद में टूट गई, वो शब्दावली समझ में नहीं आती, उस पर भी लोगों ने भाष्य लिखा है। आप कितना इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतना ये योग जानने के बाद भी आदमी जिस प्रकार का योग जान पाता है, वो जानता है कि वो एक शांत शुद्ध स्वच्छ स्थान में, किसी गुफा में या किसी एकांत में बैठे और योग का अभ्यास करे। आज के आदमी को ये सब चीज़ें उसके लिए बड़ा चुनौती है। जिस तरह का जीवन है, जिस तरह की उलझने हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो एक साधारण मनुष्य के जीवन में आने वाली चुनौतियों से बड़ी चुनौती का सामना करके लिखा गया है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें योग को जानने वाला जिज्ञासु एक अपने ही परिजनों को युद्ध में मारने के लिए खड़ा हुआ है, और ये बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है। अपने प्रियजनों को मारने के लिए उसको कर्तव्य कहता है। तो ऐसी स्थिति में उसका मन विचलित हो गया है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, उसका मुंह सूख गया है, उसकी स्थिति बड़ी भयानक है। वो विचलित हो गया है, वो सम्मोहित हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हमारे मन में कई बार आती है, हमारे जीवन में कई बार आती है। उस समय योग का प्रयोग करके, योग के दर्शन का प्रयोग करके हम कैसे मन को समता में ले आएं, उसको उत्साहपूर्ण बना लें और अपना कर्तव्य करते हुए निकल जाएं। ये बात जिस तरह से गीता में आई है और किसी ग्रंथ में नहीं आई है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि योग का जो सिद्धांत वाला पक्ष है वो तो योग सूत्र में है और व्यास भाष्य में है, लेकिन योग का जो व्यवहारिक पक्ष है, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, वो भगवत गीता में है। और भगवत गीता को जब हम ये कहते हैं कि तो हिंदुओं का ग्रंथ है, इसको कई लोग इसकी उपेक्षा करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये भगवत गीता के साथ न्याय नहीं है। भगवत गीता निसंदेह है वैष्णवों का ग्रंथ है। वैष्णव विचारधारा ने उसको रंगा है, उसको कलर दिया है, लेकिन शुद्ध रूप से उस वैष्णव विचारधारा को अगर आप साइड में हटा भी दें तो उसके नीचे जो निकलता है वो केवल योग है और सांख्य है। सांख्य पूरी गीता में भरा पड़ा। हालांकि गीता में बहुत सारे उस समय के दर्शन है, उसमें भाग्यवाद भी है, उसमें भौतिकवाद भी है, उसमें बुद्धिवाद भी है, उसमें
बहुत सारे दर्शन हैं उस समय के चले हुए, उसमें क्षणिकवाद भी है, लेकिन जो चीज़ गीता में पूरे अध्यायों में जो बिखरी पड़ी है वो योग है। हर अध्याय का अंत उसमें जो उसका शीर्षक दिया गया है उसको योग शब्द उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे दूसरा अध्याय सांख्य योगी है, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग है, और इस तरह से है। जैसे 12वां अध्याय भक्ति योग है। तो यही तो योग की धारा है जो बाद में चली। तो गीता एक तरह से, और गीता में जिस प्रेरणादायी लहजे में, जिस शैली में वो कहा गया है वो बहुत मन को उत्साहित करती है, क्योंकि योग एक ऐसा अभ्यास है जैसे आप रोज़ योग कर रहे हैं तो आप में मोनोटोनी आ सकती है, रूटीन आ सकता है, लेकिन गीता प्रेरणा देती है। वो पोएम है तो वो हर बार जब आप पढ़ेंगे तो हर बार कुछ ऐसा आपको छू जाएगी, नया अर्थ दे जाएगी। वो कविता की ब्यूटी है, वो कविता का सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य है उसमें। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि गीता एक ऐसा, और उसमें देखिए 6ठे अध्याय में तो उसकी टेक्निक भी बताई गई है। उसमें प्राणायाम की बात बार बार कही गई है कि प्राणायाम कैसे करें, और जब प्राणायाम को यज्ञ से जोड़ा है कि प्राणायाम एक यज्ञ है, तो मन प्रसन्न उठता है और मन में ये सांत्वना आ जाती है कि वेदों की लिखने के कितने 100 सालों बाद, सहस्त्राब्दियों के बाद ये गीता लिखी गई है, उसमें योग का जो अंग प्राणायाम है उसको यज्ञ कह दिया गया है। अब आप वेद को पढ़िए, वेद में यज्ञ है, तो फिर आप ये कहते हैं कि वेद में योग नहीं है, ये कितनी गलत बात है। आप परंपराओं की कंटिन्यूटी को पढ़ के देखिए, ट्रेडिशन को शुरू से अंत तक देखिए। भारत एक पारंपरिक इतिहास को आज भी जी रहा है, उस इतिहास की जीवंतता को देखिए। जो आदमी जीवंतता को देखता है उसमें धाराएं स्पष्ट नजर आती, अटूट नजर आती। योग की ऐसी धारा है जो कभी टूटी नहीं है। लेकिन जो खंडित दृष्टि से, जो भारत को जाने बिना पश्चिम के विद्वानों ने, विशेष रूप से जो अंग्रेज और जो जर्मन है, जो जितने भी पश्चिम के विद्वान हैं, उन्होंने जो देखा है वो वहीं, जैसे कहते हैं मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आया, वहाँ बैठ के जो खंडित दृष्टि से देखा है, उन्होंने इतिहास का बहुत नुकसान किया है और उन्होंने एक गलत दृष्टि ही लोगों में फैला दी है। हमारी फिल्म जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि परंपरा की जीवंतता को रेखांकित किया है हमने। ये बात सही है कि कहीं परंपराएं टूट गई है, उनके ऊपर हमने अफसोस भी उसमें दिखाया है कि ये अब इनको बताने वाला कोई नहीं है। जैसे योगिनी की परंपरा है वो टूट गई है, उसको भी दिखाया है हमने। और जब योगिनी की परंपरा टूटती है तो कहीं न कहीं योग जो है महिलाओं के हाथ से खिसक के चला जाता है। तो ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं जो हमको आज हमारे समाज को दिखाते हैं, हमको आईना दिखाते हैं। ये है तो गीता उसमें ऐसी चीज़ है जिसको हमको, क्योंकि गीता में एक दर्शन नहीं है, वो वैष्णव का कलर जरूर है लेकिन उसमें एक दर्शन नहीं है। तो इसलिए भारतीयों को कम से कम, विदेशी कुछ भी कहें, दूसरे धर्म वाले कुछ भी कहें कि ये तो इनका धर्म है, हम नहीं मानेंगे। सकारात्मक दृष्टि तो ये है कि आपके धर्म में जो अच्छा है वो हम जानें और हमारे धर्म में जो अच्छा है उसे आप जानो। इंटरफेथ डायलॉग होता क्या है, आज हम योग के क्षेत्र में जब बहस करने निकले हैं तो ऐसी ऐसी नकारात्मक दृष्टियां लेकर के उसको मान चले हैं कि ठीक है चलो इन्होंने ये कह दिया कि ये धार्मिक है, इसको हटा दो। ये नकारात्मक सोच है और ये हमको कहीं नहीं पहुंचाएगी, कम से कम योग के क्षेत्र में कहीं नहीं पहुंचाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि योग की परंपरा को सींचा है धार्मिक मनोभाव ने, रिलीजियस मनोभाव ने नहीं। जो धर्म, देखिए आप महाभारत को पढ़िए, महाभारत भारत के बारे में सबसे बड़ा और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है भारत की मनोविज्ञान को समझने में। तो उससे पता चलता है कि वास्तव में हमारे पुरखे धर्म को खोजते मर गए। धर्म वहाँ क्या था, कर्तव्य था। मनुष्य ये देख देख के उसने जीवन लगा दिया कि मेरा कर्तव्य क्या है। वो उसके भोग छूट गए, उसके ऐशो आराम छूट गए, उसके जीवन में विजय धन ये कभी लक्ष्य नहीं रहे। उसने वो ये देखते ही मर गया, वो ये इसकी खोज में ही खप गए कि धर्म क्या है। महाभारत का युद्ध ही इस बात को लेकर हो गया कि धर्म क्या है। तो उस धार्मिक परंपरा ने योग की टेक्निक को समृद्ध किया है, उसको सींचा है। आज उस धर्म को ही अगर हम इससे निकाल देंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय तो ये मानते हैं जहाँ से धर्म निकल गया तो वहाँ अधर्म हो गया। तो क्या हम अधर्म को लाना चाहते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी व्याख्या नहीं की है धर्म की, और हिंदू धर्म की तो बिल्कुल नहीं की है। तो हम हिंदुओं से, हिंदुत्व से जो
एक परहेज कर बैठे हैं, वो हमको योग की साधना में कहीं नहीं ले जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो विवाद हुए हैं, उनमें उन विवादों से बचने के लिए सरकार ने और योग संस्थानों ने, सरकार की योग संस्थानों ने जो एक राह ली है, जो एक दृष्टि ली है और जो एक्शन लिया है, वो काफ़ी नकारात्मक है। वो जैसे ओंकार का लीजिए, अब ओंकार का धार्मिक पहलू है ये मानते हैं, लेकिन ये उसका रिलीजियस उपयोग है, धर्म में शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, रिलीजियस उसका प्रयोग है ओंकार का। तो लेकिन ये भी जानना चाहिए कि ओंकार का रिलीजन के अलावा भी प्रयोग है। ओंकार कोई केवल, अच्छा एक बात ये भी माननी चाहिए कि ये ओंकार जो है वो योग के ग्रंथ में भी आया है, हिंदुओं की सारी परंपराओं में आया है, दर्शनों में आया है, और जैनों में आया है, और बौद्धों में आया है, सिखों ने इसका आदर किया है। तो ये एक तरह से ओंकार का फिनोमिना ऐसा है, ये ध्वनि है जिसको हम उभयधर्मी बोल सकते हैं कि ये सभी रिलीजन्स में, भारत में जन्मे सभी रिलीजन में ये कॉमन चीज़ है। तो भारतीय धर्म तो इसमें कहीं ऐतराज़ नहीं करेंगे। भारत से बाहर जन्मे जो धर्म इसमें ऐतराज़ करते हैं, उसके लिए मुझे ये कहना है कि ओंकार जो है, सबसे पहले तो उसको पातंजलि योग दर्शन में उसका प्रयोग देखना चाहिए। पातंजलि योग दर्शन में ईश्वर की एक व्याख्या की गई है, ईश्वर की तरफ इशारा किया गया है। वो ईश्वर जो रिलीजन में जो ईश्वर है, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में जो गॉड या अल्लाह का जो स्वरूप है, उससे बिल्कुल अलग है। इवन हिंदुओं में भी जो ईश्वर का एक रूप बन गया है, मंदिरों में जो रूप बन गया है, वो उससे थोड़ा अलग है। अलग इस संदर्भ में है कि वास्तव में तो वो अपनी ही शुद्ध चेतना है, एक ऐसी चेतना जो प्रकृति के बंधनों से सदैव मुक्त है, पहले भी मुक्त थी, अब भी मुक्त है और आगे भी मुक्त रहेगी। ऐसी चेतना भी हो सकती है, ये सांख्य ने कहा है। और सांख्य के इस दर्शन को, इस तथ्य को, इस विचार को पतंजलि योग दर्शन ने उसको ईश्वर नाम कह दिया। कई लोग ये भी बोलते हैं कि पतंजलि मुनि वो एक सयेश्वर सांख्य का प्रतिपादन करते हैं। सांख्य तो है उसमें, पर उसमें ईश्वर जोड़ा है उस पुरुष के संदर्भ में, उस चेतना की इकाई के रूप में जो प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। उसका नाम दिया है पतंजलि ने प्रणव, तस्य वाचक प्रणव है, प्रणव उसका नाम है। अब प्रणव की व्याख्या सुनिए। प्रणव की व्याख्या पतंजलि मुनि जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे एकाग्र चित्त की भी 4 स्थितियां बताई गई है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था या समाधि की अवस्था। जागृत जो अवस्था है वो ऐकार की तरफ इशारा करती है, जो स्वप्न है वो ऊकार की तरफ है, जो सुषुप्ति है वो मैकार की तरफ इशारा करती है, और जो ओम बोलने के बाद जो एक मौन रहता है उसका प्रतीक है तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था। तो इस तरह से उन्होंने बताया, और ये पतंजलि योग दर्शन में आपको इस तरह की अवस्थाएं से ओंकार का लिंक नहीं नजर आएगा। पतंजलि ने जरूर कहा है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, लेकिन इनका लिंक हमको मांडुक्य उपनिषद में नजर आएगा। परंपरा में और आगे चलिए तो मांडुक्य उपनिषद ने जो ओंकार की व्याख्या की है, बड़ी विस्तार से व्याख्या की है, उसमें ओंकार की 3 मात्राओं को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से और बाद में जो मौन रहता है उसको तुरीय अवस्था से संबंधित किया है। अब आप अपनी अवस्थाओं को कुछ नाम दे रहे हैं, उनको कुछ प्रतीक दे रहे हैं और सार्थक प्रतीक दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम दे दिया। वो ध्वनि में जो सूक्ष्मता और स्थूलता है उससे उसका संबोधन हो रहा है, तो वो काफ़ी तार्किक है और कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक है। तो योग का ये पहलू है ओंकार में। तो इसको जब ओंकार को हम हटा देते हैं तो फिर उस सीमा तक हम योग के भी इस तथ्य से वंचित रह जाते हैं। अब हम कितना योग लेना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो ये खंडित करना हो गया योग का। और भारत सरकार जब
ऐसी नीतियाँ लेकर आती है, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये योग को संपूर्णता से वो करती है। मैं मानता हूँ कि उनकी कई उलझने हैं, लेकिन संपूर्णता से योग को जानने के लिए ओंकार को हटाना जैसी प्रक्रियाएं और हिंदुत्व के कहीं ऐसी एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी तार्किक है और साइंटिफिक है, उनको हटाने से योग खंडित होता है, योग का सार निकल जाता है कहीं जगह पर। अब जैसे ये ओंकार है और जैसे ये योग है, आसन है, प्राणायाम है, ये हिंदुओं के ग्रंथों में आए हैं। ओंकार भी आया है, ये भी आए हैं, योग के सारे आसन आए हैं सब ग्रंथों में। लेकिन ये भी तो जानना चाहिए कि ये आयुर्वेद के ग्रंथों में भी आए हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में योग है, आसन है, प्राणायाम है, चरक संहिता में है। तो वो ये स्पष्ट कर देता है जब आयुर्वेद में आ गया तो ये तो है कि योग धार्मिक नहीं है, कोई हिंदू धर्म नहीं है वो, लेकिन उसमें कहीं वो हिंदुओं ने समृद्ध किया है, उन्होंने ही बढ़ाया है, तो नेचुरली उनकी छाप तो रहेगी उसमें। तो लेकिन उसको अगर समग्रता से जानना है तो उन अंगों के साथ और उस फ्लेवर के साथ शायद आप उसका पूरा स्वाद ले पाते हैं और उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। पश्चिम में योग के आसन, प्राणायाम और व्यायाम पर ज़्यादा जोर है और भारत में योग के सूक्ष्म अंगों पर ज़्यादा जोर है, ऐसी आम धारणा है। लेकिन ये धारणा गलत भी हो सकती है। देखिए, पश्चिम में जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा अपना लिया गया है। आसन प्राणायाम नज़र आते हैं, उसके ध्यान के पक्ष भी पश्चिम में बहुत पॉपुलर हैं। पश्चिम का जो योग के प्रति आकर्षण है उसके दो कारण हैं। एक तो योग का जो अवधारणा, जो ज्ञानमय पक्ष है जिसको लेकर विवेकानंद गए, वो ये था कि सबसे पहली हमारे अस्तित्व की व्याख्या योग इतनी सकारात्मक करता है, इतनी पॉजिटिव करता है कि किसी को भी सुनने वाले को मज़ा आ जाता है इसमें। जैसे ही विवेकानंद ने कहा कि भाई तुम जो है, तुम्हारा अस्तित्व सिन पूर्ण नहीं है, पापमय नहीं हो, तुम दिव्य सत्ता हो और सारी शक्तियाँ तुम में है, दिव्य सत्ता के साथ जितनी भी शक्तियाँ हैं वो तुम में है। हम भूल गए हैं उसको और साधना से उन शक्तियों को फिर से याद किया जाता है, पाया जाता है, जाना जाता है। तो पापमय नहीं हूँ मैं दिव्य हूँ और मैं सुखद हूँ, मैं आनंदमय हूँ, ये जानना किसको अच्छा नहीं लगेगा। ये आकर्षण है। समृद्ध लोगों का तो सबसे ज़्यादा, पश्चिम तो समृद्ध है बहुत टाइम से, तो समृद्ध लोगों का सबसे ज़्यादा आकर्षण यही रहता है कि मैं आनंदमय हूँ, पापमय नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, ये जानना उसको अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि योग के आसनों पर बहुत जो शोध हुआ है, जो प्राणायाम पे शोध हुआ है, जो ध्यान पे शोध हुआ है, उससे ये दो चीज़ों में बहुत उपयोगी साबित हुआ है जो उनको समझ में आ गया है। एक तो इससे रोगों से बचा जा सकता है। कुछ ऐसी रोग हैं, साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, जिनकी वैसे दूसरी दवाइयों से, औषधियों से वो इतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन योग से वो आसानी से उपचारित की जाती है, उपचार किया जाता है उनका। तो एक तो आकर्षण ये है। दूसरा जो आकर्षण है वो है कि ये देखा गया है कि योग करने से लंबा जीवन जीने में बड़ी सहायता मिलती है। आप जीवन के अवधि को कुछ सीमा तक, जैसे 1 साल 2 साल आप जोड़ सकते हैं अपने में, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 90 साल का अगर जेनेटिकली और उसके पर्यावरण में वो जीता है, जेनेटिक नेचुरली, तो वो 90 साल जी सकता है। तो अगर आप योग करते हैं तो उसमें 2-3 साल का इजाफा देखा गया है, ऐसा अलग अलग अनुसंधानों में आया। तो ये एक जीवन के प्रति आकर्षण है पश्चिम के लोगों का। कोई भी आदमी समृद्ध होता है तो उसका जीवन के प्रति आकर्षण है। तो ये जीवन के प्रति आकर्षण जो है पश्चिम को योग की तरफ लेके गया है और ये रुकेगा नहीं। कोई कितना भी दुष्प्रचार करे कि योग हिंदुओं का है, कि योग में ये है, योग में वो है, पश्चिम के लोग अगर उनको जानना है, आजकल जैसे मैं एक दृष्टांत दूं कि वैज्ञानिकों की रुचि सांख्य में है, सांख्य से भी ज़्यादा भागवत सांख्य में है। भागवत सांख्य, ये नहीं कि सांख्य जिसमें ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर कृष्ण का जो सांख्य कारिका में सांख्य है उसकी तरफ उनकी रुचि है। उनकी रुचि सबसे ज़्यादा उसमें है जो भागवत में है, जो पूरी तरह ही पारंपरिक है, जो पूरी तरह ही सांप्रदायिक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें तार्किक है। तो वो बड़े चाव से उसको देख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त उसमें अनुसंधान कर रहे हैं।
तो वहाँ का आदमी काफ़ी खुले मस्तिष्क वाला है, जो विकसित हैं, जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं, उनमें आदमी काफ़ी ओपन माइंडेड है। तो वहाँ कोई है नहीं, और जब उनके द्वारा योग अपना लिया गया है तो इसमें इसके भविष्य को लेकर किसी तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए। भारतीय कई बार ये अपमानित महसूस करते हैं, मुझे भी काफ़ी बार चोट पहुंचती है कि मेरे पूर्वजों ने जिस परंपरा को सींचा, जिसमें अपना सब कुछ दिया, उस परंपरा को समृद्ध किया, उस परंपरा को, उसकी टेक्निक को आज ले जाकर कोई आदमी ये कहता है कि इसका उस परंपरा से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये काफ़ी अपमानित कर देने वाला है। हम लोगों को जो ड्यू एक्नॉलेजमेंट है वो ज़रूर देना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? जो अनुसंधान जिसने किया है, आज न्यूटन ने कुछ खोजा है, हम न्यूटन का नाम लेते हैं। और न्यूटन, मान लीजिए कोई पादरी होता तो क्या हम ये कहते हैं कि ये तो धार्मिक था इसलिए इसको तो हम नहीं मानते, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इसलिए जिन मुनियों ने, ऋषियों ने, और आज के परिभाषाओं के हिसाब से वो वैज्ञानिक ही कहे जाएंगे, पतंजलि वैज्ञानिक ही कहे जाएंगे, मनोवैज्ञानिक हैं वो एक तरह से, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पतंजलि को और पतंजलि की उन सोच को ये कहना कि ये बिल्कुल धार्मिक नहीं है, ये भी गलत है। धर्म की जो भारत में परिभाषा है वो आध्यात्मिक ही है, वो धार्मिक ही है, लेकिन वो आवश्यक रूप से अब तार्किक भी है, वैज्ञानिक भी है। तो ये है, तो उसको उस संपूर्णता में ही देखना पड़ेगा। अगर योग का असली स्वरूप पाना चाहते हो तो योग जिन परंपराओं में मिलता है उन परंपराओं से अलग करके इसको देखने से पूरा स्वरूप दिखेगा नहीं। योग अगर कुछ हद तक जैनिज्म में है तो जैन धर्म के साथ उसको जोड़ के देखना होगा। अगर कुछ योग की कई तकनीक और ध्यान की बहुत सारी तकनीकें ऐसी है, ध्यान के कई प्रकार है, सैकड़ों हैं, वो बुद्ध परंपरा में है। और अगर आप उसको बुद्धिज्म से हटा लेंगे तो कैसा लगेगा? वो लाभ भी नहीं देगा, शायद उतना वो लाभ नहीं देगा आपको अगर आप उसको बुद्धिज्म से हटा लेंगे। इसी प्रकार जो शैवों की परंपरा है, जो शाक्तों की परंपरा है, जो तंत्रों की परंपरा है, वैष्णवों की परंपरा है, पांचरात्रों की परंपरा है, उनमें उस योग से उसको हटा हटा के कि ये तो धार्मिक तत्व है, ये हम नहीं करेंगे, इस तरह से हम एक नकारात्मक दृष्टि लेके जब योग को देखेंगे तो हम योग के कई पहलुओं से वंचित हो जाएंगे। वो दृष्टिकोण ठीक है ही नहीं। Watch this film 6000 Years of Yoga in 98 minutes. This is the DVD of the film in Hindi and English. It is available in India at www.vishuddhifilms.com and in North America from rajivmalhotra.com, and it is also available at amazon.com and amazon.in. Watch this film and enjoy.